آج میں وقت کی ساخت پر بات کروں گا جس طرح سے خدا نے اسے مخصوص کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بائبل واضح طور پر پری ملینیل منظر نامے کی تائید کرتی ہے کہ یسوع واپس آئے گا اور پرانے عہد نامے کے تمام نبیوں کی رویا کو پورا کرتے ہوئے زمین پر بادشاہی قائم کرے گا۔ مکاشفہ 20ویں باب کی 1 سے 6 آیت آنے والی اس بادشاہی کی رویا کی تصدیق کرتی ہے اور معلومات کا جو ایک ٹکڑا کم تھا اسے بھی شامل کرتی ہے کہ یہ 1000 سال تک رہے گی۔ پس اس کی اہمیت بہت بڑی ہے کیونکہ اس وقت کے یہودی بھی ایمان رکھتے تھے کہ ایک اصول کے مطابق خدا کے نزدیک 1000 سال ایک دن کے مترادف ہے۔ زبور 90 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا۔ تو تخلیق کے اس ہفتے کو پوری تاریخ کے ایک خاکے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی جیسے تخلیق کا کام 7 دنوں میں ہوا، اسی طرح انسانی تاریخ 7000 سالوں پر مشتمل ہے۔ جیسے ایک ہفتے میں 6 دن کے کام کے بعد 7واں دن آرام کا ہوتا ہے، اسی طرح تاریخ میں بھی 6000 سال کے بعد ایک 7واں 1000 سال ہوگا جب زمین مسیح کی بادشاہی میں آرام میں داخل ہوگی۔ 6 دن یا 6000 سال تک یہ زمین گناہگار انسان کے تحت لعنت اور مزدوری کی حالت میں رہے گی، لیکن جب مسیح آئے گا پھر وہ دن آئے گا اور وہ 1000 سال آئے گا جب زمین برکت اور آرام میں داخل ہوگی۔ اس لیے اس میسینک بادشاہی کے دور کو خداوند کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اب نوٹ کر لیں، اس اصطلاح خداوند کے دن کا 2 طرح سے اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ خداوند کا چھوٹا دن یعنی مصائب کا دور، خداوند کی مداخلت اور عدالت کا دن، اور پھر ہے خداوند کا لمبا دن جو کہ میسیانک بادشاہی ہے جب خداوند خود اس زمین پر بادشاہی کرے گا۔ سیاق و سباق ہمیشہ اسی بات کو واضح کرتا ہے جو اصل میں ہوتی ہے۔ اب تخلیق کے ہفتے کی بنیاد پر خدا کا 7000 سالہ پلان اور یہودیوں کا یہ اعتقاد مسیح کے زمانے میں بھی کافی مشہور تھا۔ تو جب یوحنا نے کہا کہ مسیح آئے گا اور 1000 سال تک بادشاہی کرے گا، تو وہ واضح طور پر اس کی تائید کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یسوع واپس آئے گا اور تاریخ کے سبت کا آغاز کرے گا۔ وقت کی کوئی اور لمبائی اس اعتقاد کے خلاف ہو سکتی تھی، لیکن 1000 سال کہہ دینے سے خدا تصدیق کر رہا تھا کہ وہ تاریخ کے اس ہفتے کے ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کر رہا ہے جس میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ دوسرا پطرس 3:8 میں پطرس رسول نے بھی اس بات کی تصدیق کی، جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے، یا عزیزو تم اس بات سے ناواقف نہ رہو کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد وہ 9ویں آیت میں کہتا ہے کہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہاں وہ خداوند کی آمد ثانی کے وقت کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے حالانکہ لگتا ہے کہ انتظار کافی لمبا ہو گیا ہے، ایسا اس لیے نہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں بے دل یا لاپرواہ ہو گیا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نجات پائیں۔ تاہم وہ ہمیشہ تک انتظار کرتا نہ رہے گا کیونکہ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہا ہے، اور اس ٹائم ٹیبل کی کنجی یہ حقیقت ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ خداوند کا ایک دن انسان کے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ جب یوحنا اور پطرس رسول اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودی ربیوں کے ساتھ ساتھ ابتدائی مسیحی بھی یہ اعتقاد رکھتے تھے، جو کلیسیا کی پوری تاریخ میں بہت ہی مضبوط اعتقاد رہا۔ تو خدا تاریخ پر اپنی حاکمیت کو ظاہر کرتا ہے اسے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلانے سے۔ دیکھیں، آدم سے ابراہیم تک 2000 سال بنتے ہیں، یہ پہلے 2 دن ہیں، اور پھر ابراہیم سے مسیح کی پہلی آمد تک 2000 سال بنتے ہیں، یہ اگلے 2 دن ہیں۔ تو ان پہلے 4 دنوں کو پہلے دن کہا جاتا ہے، اور اگلے 2000 سال یا 2 دن مسیح کی پہلی آمد سے دوسری آمد کا دورانیہ ہے، کیونکہ اس نمونے کے مطابق مسیح تاریخ کے 6 دن کے آخر پر ضرور واپس آئے گا۔ اب آخری 1000 سال یا آخری دن دراصل تاریخ کا سبت ہے، یعنی خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی۔ تو آخری 3 دن دراصل کہلاتے ہیں اگلے دن۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مسیح کی پہلی آمد کو تو پہلے ہی 2000 سال ہو چکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ابھی ہم سن 2000 سے اوپر جا رہے ہیں۔ اب یہ کنفیوژن بہت عام ہے کیونکہ ہم سالوں کو خداوند یسوع کی پیدائش سے گنتے ہیں، بس اس لیے جب ہم سال 2000 سے آگے گزرے تو بہت سے لوگوں نے فرض کر لیا کہ یہ خیال درست نہیں ہے۔ تاہم تاریخ کے اہم موڑ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اگلے دن کب شروع ہوئے، اور جب ڈسپنسیشن بدلا، یہ مسیح کی پیدائش سے نہیں بلکہ سن 33 میں اس کی موت اور جی اٹھنے سے گنا جاتا ہے۔ تو اگر ہم بعد کے 2000 سالوں کو گننا چاہتے ہیں تو ہم سن 33 سے انہیں گن سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ان 2000 سالوں کے آخر تک ابھی نہیں پہنچے،
लेकिन हम काफी करीब हैं। तो तारीख दरअसल तख्लीक के 7 दिनों के नमूने पर है, यानी तख्लीक के 7 दिन और फिर तारीख के 7,000 साल। हम छठे दिन या 6,000 सालों के बिल्कुल आखिर में खड़े हैं और इसलिए सब्बत 7वां दिन या 7वां 1000 साल शुरू होने वाला है, जब यीशु जो सब्बत का मालिक है बादशाही करेगा। और ये बहुत सी वजूहात में से एक है कि मैं ईमान रखता हूं कि इस वक्त हम बिल्कुल आखिरी दिनों में जी रहे हैं। अब आइए हम वक्त के इस खाके की 3 जबरदस्त तस्दीकात को देखेंगे कि खुदा की नजर में एक दिन इंसान के 1000 साल के बराबर है। वक्त के खाके के बारे में सीखने के लिए मैं कहूंगा कि मेरी किताब कीज ऑफ टाइम पढ़ें। चलिए अब पहली तस्दीक देखते हैं। आदम के गुनाह से लेकर मसीह की मौत तक के 4 दिन या 4000 साल दरअसल जाहिर करते हैं उस फसा के बर्रे को जो कुर्बानी से 4 दिन पहले लेकर रखा जाता था। खरूज 12वें बाब के मुताबिक फसा का बर्रा महीने के 10वें दिन लेकर रख लिया जाता और 14वें दिन उसे कुर्बान किया जाता। इसी तरह यीशु मसीह को भी बनाए आलम से पेशतर ही लेकर रख लिया गया 4 दिन पहले ही, जो कि सलीब पर उसकी कुर्बानी से पहले के 4000 साल बनते हैं। फिर हमारी दूसरी मिसाल होसिया से आती है। होसिया की किताब में जबरदस्त पेशिन गोई है। चूंकि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने से लेकर उसकी आमद सानी तक 2000 साल या 2 दिन बनते हैं, तो होसिया 5वें बाब की 14वीं आयत में और इससे अगली आयत में मसीह से मुतल्लिक पेशिन गोई है। लिखा है, क्योंकि मैं यानी मसीह इफ्राइम के लिए शेर बब्बर और बनी यहूदा के लिए जवान शेर की मानिंद होगा। यीशु इसराइल के लिए एक शेर, एक बादशाह की मानिंद आया, पर उन्होंने उसे रद्द किया। इसलिए बनी इसराइल की अदालत होगी और इसकी पेशिन गोई है। यहाँ लिखा है कि मैं ही फाड़ूंगा और चला जाऊंगा। वो आसमान पर चला गया, मैं उठा ले जाऊंगा। उसने उन्हें उस सरजमीन से उठा दिया और कोई छुड़ाने वाला ना होगा। ये पेशिन गोई है कि मसीह के आने के बाद बनी इसराइल तितर बितर हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु को रद्द किया। और फिर इससे आगे होसिया 5:15 में यूं लिखा है कि मैं रवाना हूंगा और अपने मस्कन को चला जाऊंगा। ये यीशु के आसमान पर उठाए जाने से मुताल्लिक है। और अपने मस्कन को चला जाऊंगा जब तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करके, गुनाह क्या था? उनका गुनाह ये था कि उन्होंने यीशु के मसीह होने की हकीकत को रद्द किया। वो कहता है, जब तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालिब ना हो। यहां पर जब तक के का मतलब है कि एक खास वक्त के बाद वो वापस आएगा। वो जाएगा लेकिन बस थोड़े वक्त के लिए, और फिर वो वापस आएगा। और जिस वक्त वो वापस आएगा वो बनी इसराइल पर मुनहसर है, जब वो तौबा करेंगे कि उन्होंने उसे रद्द करने का गुनाह किया है। फिर वो आगे बढ़ता है और उनकी तौबा का बयान करता है। वो कहता है, जब तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालिब ना हो, वो अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालिब होंगे। और ये भी एक पेशिन गोई है कि मुसीबत में यानी मसाइब के दौर में आखिरकार बनी इसराइल जानेंगे कि असल में मसीह कौन है। और फिर होसिया 6:1 में वो अल्फाज दर्ज हैं जो इसराइल के रहनुमा बोलेंगे और कौमों को तौबा के लिए और मसीह की तरफ रजू करने के लिए बुलाएंगे। वो कहेंगे, आओ हम खुदावन की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो जानेंगे कि उनकी बेअतकादी की वजह से उनकी अदालत हुई, लेकिन अब दोबारा खुदा उन्हें उठाएगा और बहाल करेगा। और फिर होसिया 6 बाब की दूसरी आयत में वो इशारा देता है कि मसीह के जाने और उनकी अदालत करने और फिर वापस आकर उनको बहाल करने के दरमियान का अरसा कितना है। फिर लिखा है, वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा, यानी 2000 साल बाद, और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। किसको? यानी बनी इसराइल को। ये तीसरा रोज दरअसल 1000 साला बादशाही है जिसमें हम उसके साथ जिएंगे। तो ये पेशिन गोई बताती है कि मसीह बनी इसराइल के पास आएगा, फिर वापस आसमान पर जाएगा, और ये पूरी हो चुकी है। और फिर बताती है कि 2 रोज के आखिर में वो उन्हें हयात ताज़ा बख्शेगा, यानी 2000 साल के आखिर में। और फिर ये बताती है कि तीसरे रोज बतौर कौम वो उन्हें उठा खड़ा करेगा ताकि वो उसके हजूर जिंदगी बसर करें। तो अगली आयत में हम देखते हैं कि वो अपनी दूसरी आमद पर इसराइल को बहाल करेगा और उठा खड़ा करेगा। तो ये तीसरा रोज क्या है? ये 1000 साला बादशाही है, जब बनी इसराइल कौम पूरे तौर पर ईमान में बहाल होंगे और वो सरदार कौम के तौर पर खुदा के हजूर जिंदगी बसर करेंगे। और होसिया 6:3 बयान करती है कि जब मसीह कुदरत और जलाल में वापस आएगा तो वो खुद इसराइल को बहाल करेगा। यहां पर यूं लिखा है,
आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। फिर लिखा है वो आखिरी बरसात की मानिंद आएगा, ये दूसरी आमद की बात है। उसका ज़हूर सुबह की मानिंद यकीनी है। तो 2 रोज बाद वो उन्हें बहाल करेगा और वो खुद ये काम करेगा जब वो आसमान पर से वापस बनी इसराइल के पास आएगा। और कलाम ये बताता है कि उसका ज़हूर सुबह की मानिंद यकीनी है। ये उसकी आमदे सानी की बात है जब वो आफताब सदाकत जलाल में तलू होगा और तारीख इंसानी के नए दिन का आगाज करेगा, जैसे मलाकी 4:2 में लिखा है कि आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। तो जब कलाम कहता है कि वो आसमान से जाएगा और वो आफताब सदाकत तलू होगा, तो इसका मतलब है कि उसका जलाली ज़हूर यकीनी है और उसका एक खास वक्त होगा। दूसरे लफ्जों में, जैसे आप जानते हैं कि सूरज सुबह को निकलता है और उसे एक खास वक्त पर निकलना ही है, इसी तरह बनी इसराइल की निजात के लिए भी मसीह एक खास मुकर्ररा वक्त पर आएगा। तो खुदावंद की वापसी के लिए, उसके जलाली ज़हूर के लिए ये खास वक्त आखिर कौन सा है जब वो बनी इसराइल को बहाल करेगा? हम पहले ही होसिया 6:2 में इसका इशारा देख चुके हैं कि ये 2 रोज बाद होगा, यानी सन 33 में खुदावंद यीशु के आसमान पर उठाए जाने के 2000 साल बाद होगा। और आखिर में होसिया 6:3 में रूहानी बरकतों का जिक्र है जो उस तीसरे रोज में मिलेंगी। लिखा है वो हमारे पास बरसात की मानिंद, यानी आखिरी बरसात की मानिंद जो जमीन को सैराब करती है, आएगा। तो होसिया की किताब में ये पूरी पेशिन गोई पहले मसीह के रद्द होने के बारे में बताती है, फिर 2 रोज यानी 2000 साल के लिए आसमान पर जाने के बारे में, इससे पहले कि वो वापस आकर इसराइल को उठाए और बहाल करे और तीसरे 1000 साल में जमीन पर अपनी बरकत को उंडेले। हमारी अगली मिसाल, एक और अहम चीज लूका 10वें बाब में दर्ज नेक सामरी की तमसील में मौजूद है, जिसमें यीशु ने यह बताया कि अपने पड़ोसी से प्यार करने का क्या मतलब है। और ये उस सवाल का जवाब भी था जो लूका 10:25 में यीशु से पूछा गया, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। पहले यीशु ने उस शख्स को यह दिखाया कि वो इतना अच्छा नहीं है कि खुद को बचा सके, क्योंकि वो अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करता जैसे खुदा चाहता है। उस वक्त यहूदी और सामरी एक दूसरे से नफरत करते थे। तो ये साबित करने से कि सामरी उसके पड़ोसी हैं, यीशु ने उसे बताया कि उसके अंदर नस्ली तासुब का गुनाह है। तो यीशु ने निजात के लिए पहला कदम उठाने में उसकी मदद की, उसे बताकर कि वो खुद पर भरोसा करके निजात नहीं पा सकता, उसे निजात दहिंदा की जरूरत है। खुद से निजात पाने की उसकी झूठी उम्मीद को मिटाने के बाद इस तमसील में खुदावंद यीशु ने हकीकी निजात का रास्ता भी उस पर जाहिर किया, क्योंकि इस तमसील में फजल से निजात की एक बड़ी ही जबरदस्त तस्वीर है। इसमें बताया गया है कि अबदी जिंदगी हमें खुदावंद यीशु से एक फ्री गिफ्ट के तौर पर मिलती है, और इस तमसील में हर एक तफसील का एक मतलब है। इसमें नेक सामरी यीशु है, जो अकेला एक अच्छे पड़ोसी की तस्वीर है, जो रहम करता है और मोहब्बत करता है, हत्ता के अपने दुश्मन से भी। सिर्फ एक ही हस्ती इस तमसील को पूरा कर सकती थी, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। हम उस आदमी की मानिंद है जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। हम खुद अपने आप को नहीं बचा सकते, सिर्फ नेक सामरी है जो आकर हमें बचा सकता है। आयत नंबर 30 में लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। ये आदमी हम सब की नुमाइंदगी करता है। ये बहुत ही खतरनाक सफर था। ये एक बंजर और बियाबानी रास्ता था। डाकुओं के लिए ये बड़ी अच्छी जगह थी। अचानक मोड़ और चट्टानों की वजह से उनके लिए छुपना और अचानक हमला करना आसान था। ये टेढ़ा मेढ़ा और काफी नशीबी इलाका था, जो सतह समंदर से 2300 फुट ऊपर यरीहो को जाता था, और ये सतह समंदर से भी 1300 फुट नीचे था, यानी जमीन की सबसे निचली जगह। इंसान के गुनाह में गिरने की कैसी तस्वीर है। वहां अकेले जाना बेवकूफी थी। ये उसकी गलती थी कि वो लूटा गया, और ये शख्स आदम और हम सब की नुमाइंदगी करता है। यशायाह 53:6 में लिखा है कि हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए और हम में से हर एक अपनी राह को फेरा। ये उस रास्ते की कामिल तस्वीर है जो इंसान ने लिया जब वो खुदा से दूर होकर गुनाह में गिर गया। देखिए, हम यरूशलेम में रहने के लिए बनाए गए थे, जो कि अमन का शहर है, अजीम बादशाह का शहर, जहां खुदा का राज है, जहां खुदा की हजूरी रहती है और इंसान की खुदा से रफाकत रहती है। लेकिन इंसान ने गुनाह किया और खुदा से दूर चला गया और मौत की राह पर चल निकला। जैसा कि लूका 10वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि वो डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अधमुआ छोड़कर चले गए। आपने देखा, उन्होंने उसे मार पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया। गुनाहगार इंसान की कैसी तस्वीर है। यीशु ने यह दिखाने के लिए तमसील बताई कि गुनाहगार इंसान कैसे बेयारो मददगार होता है। वो खुद को बचा नहीं सकता, उसे निजात दहिंदा की जरूरत होती है। इंसान खुद अपने आप को खुदा के तहफ्फुज़ से बाहर निकालता है, जहां शैतान और लानत खुदा की सब बरकतें उससे चुरा सकते हैं। वो हमारा रास्तबाजी का लिबास उतार लेता है, हमारा इत्मीनान छीन लेता है हमारे जहन और बदन से, और सबसे बढ़कर हमें अधमुआ छोड़ देता है।
मतलब हम रूहानी तौर पर मर गए और जिस्मानी तौर पर भी मरने वाले हैं, और यूं हम अब्दी मौत में दाखिल हो जाएंगे। अब देखिए, खुदा ने आदम और हवा से कहा कि जिस रोज तूने इस दरख्त का फल खाया तू मरा। तो इसका हकीकत में ये मतलब है कि तू रूहानी तौर पर मर जाएगा। दो तरह की अमवात हैं। इंसान की रूह पहले मर गई और अब उसका बदन मरने के अमल में है। तो इस तरह से वो अधमुआ था। और मसीह के बगैर तमाम इंसान ऐसे ही हैं, ना उम्मीद और बेयारो मददगार, खुद को बचा नहीं सकते। और हमारी उम्मीद सिर्फ ये है कि यीशु नेक सामरी ही हमें बचा सकता है। खोए हुओं को निजात देने के लिए मसीह की पहली आमद का बयान लूका 10:33 में है। लिखा है, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। ये सामरी दरअसल यीशु की तस्वीर है। और कहानी में ट्विस्ट यह है कि सामरी, चूंकि यहूदी उनसे नफरत करते थे, इसी तरह से लोगों ने यीशु से भी नफरत की और उसे रद्द किया। और देखें, बाइबल कहती है कि हम खुदा के दुश्मन थे तो भी उसने हमसे प्यार किया। और हमने देखा आयत 33 में लिखा है, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला। यीशु एक मकसद के साथ हमारे पास आया। वो आसमान से जमीन पर सफर करके आया। वो आसमानी यरूशलेम से एक मिशन पर आया था। और लूका 19:10 हमें बताती है कि यीशु एक मकसद के तहत हमारे पास आया था। वो इस मिशन के साथ आया कि खोए हुओं को ढूंढे और निजात दे। हम खुदा के पास नहीं आ सकते थे, खुद को बचा नहीं सकते थे, हम मर गए होते। हम उस अधमुए शख्स की मानिंद थे। और जब हम उसके पास आने के काबिल नहीं थे तो खुदावन यीशु हमें बचाने के लिए हमारे पास आ गया। उसने खुद को इतना आजिज किया कि इंसान बन गया। उसने खुद को आजिज किया ताकि हमें समझ सके, हमारे लिए जान दे, हमें उठाए और बाप के हजूर ले जा सके। उसने हमें ढूंढा, हम तक पहुंचा, हमें मौत और गुनाह से बचा लिया। तमसील में यूं लिखा है कि उसे देखकर उसने तरस खाया। और यीशु ने हमें देखा, उसने आपको देखा जो गुनाह और बीमारी में बेयारो मददगार थे और मरने वाले थे। और उसने आपको देखा और आप पर तरस खाया। जब हमारे पास खुद को बचाने की कुवत नहीं थी तो वो हमारा पड़ोसी बन गया। वो हमारी तरह एक इंसान बन गया और हमें बचाने के लिए आया। हमारे साथ उसकी मोहब्बत की वजह से उसने खुद को आजिज कर दिया कि वो हमारी मानंद बने और हाथ बढ़ाकर हमें कीचड़ में से बाहर निकाल ले। इसके बाद हम देखते हैं कि इस आदमी को कैसे बचाया गया। 34वीं आयत में लिखा है, उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मै लगाकर बांधा। और देखिए, सलीब पर यीशु हमारी मानंद बन गया। वो हमारे लिए नापाक बन गया। हमारे गुनाह, हमारी लानत, बीमारी और मौत को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम निजात पाएं, हम शिफा पाएं और हम बहाली पाएं। उसने आकर हमारे जख्मों को बांधा और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। उसने हमारे जख्मों पर तेल और मै उंडेली। ये रूहुल कुद्स की जबरदस्त तस्वीर है। यीशु ने अपने रूह को हमारे अंदर उंडेला जब हमने उससे दुआ की और उसे कबूल किया। तेल और मैं दरअसल रूहुल कुद्स की 2-fold मिनिस्ट्री का बयान है। नंबर 1, तेल नई पैदाइश में रूह की नुमाइंदगी करता है। और नंबर 2, मैं रूहुल कुद्स के बपतिस्मे और इसकी मामूरी की नुमाइंदगी करती है। देखें, खुदा चाहता है कि हमारा प्याला लबरेज हो, कसरत की जिंदगी के साथ, पाकरू के मसा, कुदरत और शादमानी के साथ। इफ्सियों 5:18 में खुदा फरमाता है कि शराब में मतवाले ना बनो, इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। वो रूह से मामूर होने के साथ इसका मुआजना करता है। और जब आप रूह से मामूर होते हैं तो आप में से जिंदगी की नदियां जारी हो जाती हैं। जैसे यीशु ने यूहन्ना 7वें बाब की 37वीं से 39वीं आयत में वादा किया है कि जिंदगी के पानी की नदियां तुम में से जारी होंगी। तेल और मैं की इस दोहरी खिदमत का बयान मत्ती 9वें बाब की 17वीं आयत में मौजूद है। यीशु ने कहा, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं, या फिर नई की गई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। यहां मशकें हमारी रूहों की नुमाइंदगी करती हैं, जो इसलिए बनी हैं कि खुदा की मैं इनमें रखी जाए। मगर गुनाह में गिरने की वजह से ये पुरानी हो गईं और इस काबिल नहीं रहीं कि खुदा का रूह और जिंदगी इनमें रह सके। ये तभी नई हो सकती हैं अगर इन पर तेल मला जाए। तो यही कुछ किया जाता था। वो पुरानी मशकों पर तेल मलते थे ताकि वो नई हो जाएं और इस्तेमाल के काबिल हो जाएं। और ये तेल मलना दरअसल नई पैदाइश की तस्वीर है, क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया तो रूहुल कुद्स आया और उसने हमारी रूह को बिल्कुल नया बना दिया। और अब चूंकि हमारी रूहें खुदा के तेल के वसीले, उसके रूह के वसीले नई हो गई हैं, तो हमारी रूहों में अब नई मैं भरी जा सकती है। हम मामूर हो सकते हैं। हमारी नई की गई मशकें इस काबिल हैं कि इनमें खुदा की मैं को भरा जा सके।
اب تیل ایک بار دیا گیا لیکن میں بار بار مسلسل دی جاتی ہے، یعنی اب ہمیں مسلسل پیتے رہنا ہے۔ جب اس شخص کو بچایا گیا تو اسے کچھ میں ملی، لیکن بعد میں جب وہ سرائے میں پہنچ گیا تو وہ جتنی چاہے میں لے سکتا تھا، اور جتنی بار اس نے کہا بھٹیارے نے اس کے پیالے کو بھرا۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اسے اپنے جانور پر سوار کیا۔ یہ اس بات کی تصویر ہے کہ یسوع نے ہمیں گڑھے میں سے نکالا اور اپنی بادشاہی میں ہمیں اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ آدمی جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیسے ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے۔ یسوع نے پہلے اسے دکھایا کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اگر وہ اپنے پڑوسی سے پیار نہ کرے جس طرح خدا چاہتا ہے۔ اس کے بجائے وہ تمثیل میں اس نا امید اور مرتے ہوئے شخص کی طرح ہے جو اپنی کوشش سے نہیں بچ سکتا، بلکہ اسی صورت میں بچ سکتا ہے اگر وہ نیک سامری کی اس خدمت کو قبول کرے۔ دیکھیں، تکبر میں وہ اس مدد کو رد بھی کر سکتا تھا کہ چھوڑ دو، مجھے مرنے دو۔ اسی طرح نجات پانے کے لیے ہم سب کو بھی یہی کرنا ہے کہ یسوع کی بچانے والی خدمت کو قبول کرنا ہے اور اسے تیل اور میں انڈیلنے دینا ہے۔ بہرحال اس تمثیل میں یسوع نے جواب دیا کہ کیسے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، یہ ظاہر کرنے سے کہ نجات ہمیشہ ایمان کے وسیلے فضل ہی سے ملتی ہے۔ ہمیں خود کو اس مرتے ہوئے شخص کی طرح دیکھنا ہے جو خود سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ صرف یسوع نیک سامری ہمیں بچا سکتا ہے۔ پھر سے جی اٹھ کر وہ اپنے تیل اور مے کو ہم میں انڈیلنا چاہتا ہے۔ ہمیں بس اس کی بچانے والی قدرت کو قبول کرنا ہے۔ اب یہاں شاید ہم توقع کریں کہ یسوع یہاں تمثیل ختم کر دے گا کیونکہ مرکزی بات تو اس نے کہہ دی، لیکن وہ کچھ اور تفصیلات شامل کرتا ہے۔ کیوں؟ لازم ہے کہ وہ اس تمثیل کے ذریعے سے ہمیں کلیسیائی دور سے متعلق اہم معلومات دینا چاہتا ہے۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اسے ایک سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ اب یروشلم اور یریحو کے بالکل درمیان میں ایک سرائے تھا تاکہ لوگ وہاں پر آرام کر سکیں۔ ہمیں بچانے کے بعد یسوع ہمیں ایک سرائے میں لے گیا جو کلیسیا کی تصویر ہے، جو کہ اطمینان اور ڈاکوؤں سے تحفظ کی جگہ ہے۔ وہاں پہ دوسرے مسافروں کے ساتھ رفاقت ہو سکتی ہے، اچھا کھانا ملتا ہے تاکہ آپ پھر سے قوت پا سکیں، بحال ہو سکیں اور دوسروں کی بھی مدد کر سکیں جنہیں نیک سامری نے بچایا ہے۔ یسوع نے کلیسیا کو ایسی جگہ کے طور پر قائم کیا جہاں وہ ہماری خبر گیری کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ مطلب اس نے پوری قیمت ادا کی۔ اس کے بعد نیک سامری وہاں سے نکل کر یروشلم کو چلا گیا، بالکل اسی طرح جیسے ہمیں بچانے آیا مسیح واپس آسمانی یروشلم میں چلا گیا، لیکن وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ اس نے بھٹیارے کو ہماری خبر گیری کے لیے چھوڑا ہے، جو کہ روح القدس کی تصویر ہے۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ تمثیل میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے بھٹیارے سے کہا کہ میں واپس آؤں گا، لیکن اس دوران اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ بھی اسے چاہیے اسے دینا، اور اس کے معاوضے کے طور پر اس نے بھٹیارے کو 2 دینار دیے، جو کہ 2 دن کی مزدوری تھی، کیونکہ مزدوروں کو 1 دینار 1 دن کی مزدوری کے طور پر دیا جاتا تھا۔ متی 20ویں باب کی تمثیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اب اس میں واضح اشارہ یہ ہے کہ اسے 2 دن کے بعد وہاں واپس آنا تھا۔ اسے یروشلم جانا تھا اور 2 دن بعد وہاں سے واپس سرائے میں آنا تھا۔ تو یہ بھی یسوع کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ پہلے ہمیں بچانے کے لیے آیا اور پھر 2 دن یعنی 2000 سال کے لیے وہ آسمانی یروشلم واپس چلا گیا۔ اب وہ واپس آئے گا اور ہمیں آسمانی یروشلم میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا، جیسا اس نے یوحنا 14ویں باب میں وعدہ کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ یسوع جلد آ رہا ہے۔ وہ ہماری نجات کے لیے موا اور ہمیں مے اور تیل دیا، آسمانی یروشلم میں چلا گیا اور نیک سامری کی طرح واپس آنے کا وعدہ کیا 2 دن یا پھر 2000 سال بعد۔ تو یہ 2 دینار یہاں تصدیق کرتے ہیں کہ موجودہ دور دراصل وہی 2000 سال ہیں، اور یہ اس بات کی تصدیق بھی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی آمد کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ 2 دن بعد لوٹے گا، اور ہم اس کے آسمان پر جانے کے بعد کے 2000 سالوں کے بالکل آخر پر ہیں۔ تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت ہی زبردست دور میں جی رہے ہیں، جہاں دنیا بڑی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بہت جلد یسوع جو ہمارا نیک سامری ہے وہ آسمانی یروشلم سے ہمیں لے جانے کے لیے لوٹے گا۔ اب پیشین گوئی کو سمجھنے کے لیے ہماری اگلی کنجی ہے، اسرائیل اور کلیسیا خدا کے الگ الگ لوگ ہیں جن کا انجام اور پیشین گوئیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ ہمیں کلام کی لفظی تشریح ہی سے پتہ چلتا ہے۔
सादा मतलब है इसराइल और कलीसिया मतलब कलीसिया। सिर्फ हमारे इंसानी दलाइल इन मामलात को उलझाते हैं। खुदा ने इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स रखे हैं। पेशिनगोई की गलत तशरीह से बचने के लिए हमें यहूदियों और गैर कौमों और इसराइल और कलीसिया के दरमियान फर्क को नजरअंदाज नहीं करना। हम ये देखेंगे कि नए अहदनामे में हमेशा इनके फर्क को वाज़े बयान किया गया है और बाइबल अपनी इस्तिलाहात के मामले में हमेशा कायम है और हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि अपनी इंसानी थियोलॉजी में फिट करने के लिए खुदा के कलाम को अपने मुताबिक बिगाड़ लें। और पहला कुरिन्थियों 10:32 में ये फ़र्क बड़े वाज़े तौर पर बयान किया गया है, जहां लिखा है कि तुम ना तो यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो यानी इसराइल, और फिर लिखा है ना यूनानियों के लिए, ये गैर कौमें हैं। नंबर 3, ना खुदा की कलीसिया के लिए। यहाँ पौलुस 3 अलग अलग ग्रुप्स की निशानदही करता है। पहले वो यहूदियों और गैर कौमों के दरमियान फ़र्क बताता है। अब देखिए, पुराने और नए अहदनामे में यहूदियों को अब्राहम, इसहाक और याकूब की नस्ल के तौर पर देखा जाता है और उनके अलावा बाकी सब गैर कौमें हैं। तमाम यहूदी बनी इसराइल कहलाते हैं। यहूदियों और गैर कौमों के दरमियान फ़र्क को पूरी बाइबल में कायम रखा गया है। और पहला कुरिन्थियों 10:32 में पौलुस यहूदियों और गैर कौमों दोनों की निस्बत कलीसिया की इम्तियाजी हैसियत बयान करता है। कलीसिया मसीह का बदन है जिसमें मसीह में तमाम ईमानदार शामिल हैं, वो चाहे यहूदियों में से हो या गैर कौमों में से। तो आज हर एक शख्स जो यहूदी है या फिर वो गैर कौम में से है, अगर वो मसीह में ईमानदार है तो वो कलीसिया का हिस्सा भी है। और इसके साथ यहूदी या गैर कौम होते हुए अगर कोई जिस्मानी तौर पर मर्द या औरत है, तो अगर वो मसीह में आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बतौर मर्द या औरत वो अपनी शनाख्त खो देगा, बल्कि उसके साथ वो कलीसिया का हिस्सा भी बन जाएगा। समझाना ये चाहता हूं कि मसीह में यहूदी ही है और गैर कौम ही है, लेकिन अगर वो ईमानदार बन जाते हैं तो वो कलीसिया का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो पेशिनगोई को सही तौर पर समझने के लिए हमें इस फर्क को समझना होगा। तो किसी पेशिनगोई की तशरीह करते हुए उलझन से बचने के लिए हमें ये पूछना चाहिए कि ये इसराइल के बारे में है, गैर कौमों के बारे में है, या फिर कलीसिया के बारे में है। मतलब ये कि इसराइल के साथ जो वादे हैं बुनियादी तौर पर वो उन्हीं में पूरे होंगे, ना कि कलीसिया में। और जो बरकत खुदा के पास कलीसिया के लिए हैं, वो उन वादों को मनसूख नहीं करती जो खुदा पहले ही इसराइल के साथ कर चुका है।